Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will try to cover the second part of the relative clause, that is the non-defining relative clause, or in other words, non-limiting relative clause or non-restrictive relative clause. In our previous topic, we discussed in detail about the first part of the relative clause, that is the defining relative clause. And in that very topic, we discussed what actually is defining relative clause and where we use that very clause. And in a defining relative clause, the main aim of that very clause is to identify the particular noun, to identify that particular person or thing. First of all, we have to identify that very thing, and after that, we use who for the persons, and that and which for the things and animals. That means in that very clause, we use definitions to define that very particular noun. But in non-defining relative clause, first of all, the particular noun is already identified. The particular noun is already uh, chosen, but we have to give the extra or additional information about that very noun. That means non-defining relative clause gives us the extra or non-essential or additional information about that very noun which is already identified. But in defining relative clause, we give essential information to identify that very noun. First of all, we have to identify that very noun, and in that case, we give essential information. But in non-defining relative clause, we give additional because the noun is already identified. The noun whom we are talking about is already identified, and in that very part, we just give extra or additional information about that very noun, about that very particular noun which is already identified. And in that case, even if we skip that very extra or additional information, the sentence would still make a perfect sense. If we skip that very information, the sentence would still make perfect. That's a very important point. But in defining clause, if we skip that essential information, the sentence would not still make a perfect sense. But in non-defining clause, it is already identified. The noun is the noun, either a thing or a person. It is already identified. But if we skip very extra or non-essential information, the sentence would still make a complete sense, perfect sense. To somehow it lacks some information, but it would still make a perfect sense. Here we don't need it to understand who or what is being referred to. But in defining relative clause, we just need who or what is being referred to. For that, we use defining relative clause. We have to identify that very noun, because in non-defining, it is already identified. Here we don't need who is being taught, who is being referred to, what is being referred to. Here it is already identified. Non-defining relative clause should be separated from the rest of the sentence by comma or commas. But defining clause should not be separated from the, because defining clause gives us the essential information. That is why it is not separated by comma or commas, while as non-defining clause gives us extra information. That is why it is being separated from the rest of the sentence by comma or commas. Now some examples, like my grandmother. It is already identified whom we are talking about. It is my grandmother, my grandfather, my son, my daughter. That means these all are identified. Who is 86 years old is coming on holidays with us this year. The very important point हमें करना क्या है, my grandmother, उसके बाद comma, who is 86 years old, that is the extra essential information. वो कितने की साल की है, that is not important. What actually is important, my grandmother is coming on holidays with us this year. वो हमारे यहाँ holidays पर आ रही है इस साल. लेकिन who is 86 years old, that is the non-defining clause. That is why it has been separated from the rest of the sentence by a comma. And it just gives about
हाउ ओल्ड माई ग्रैंड मदर इज़, बट वी ऑल नो माई ग्रैंड मदर, मेरी माँ है, मुझे मालूम है कितने साल की है. दैट इज़ द नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. दैट मीन्स इस चीज़ को अगर हम स्किप भी करें तो सेंटेंस पर कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं. लाइक माई ग्रैंड मदर इज़ कमिंग ऑन हॉलीडेज विद अस दिस ईयर. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज must always be introduced by which and never by that. While as in defining clause में हमने पढ़ा है कि डिफाइनिंग क्लॉज जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच से भी और दैट से भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ह्यूमन्स के लिए हु, while as for things and animals विच और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज always must always be introduced by which and never by that. ये याद रखना है. जब हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की बात करें तो हमें ऑलवेज जो है विच से ही जो है इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना होगा, एंड नेवर बाय दैट, और कभी हमें दैट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है. और फॉर थिंग्स वहाँ पर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ. यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमने चार्ट बनाया है. सब्जेक्ट, इफ द पर्सन इज सब्जेक्ट, पर्सन के लिए हु, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए विच. वाइल एज फॉर ऑब्जेक्ट हु और हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड थिंग्स के लिए सिर्फ विच, और प्लेस के लिए वायर, और रीज़न के लिए वाई. फॉर पॉजेसिव वहाँ पर आप हु इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं देखा दैट. वाइल एज इन डिफाइनिंग क्लॉज वहाँ पर आप दैट का भी और विच का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ यू कैन नॉट लीव आवर रिलेटिव प्रोनाउन in non-defining relative clause even it is the object of the relative clause, जिसे हम defining relative clause में contact clause भी कहते हैं. That means यहाँ पर आप leave out जो है relative pronoun को निकाल नहीं सकते. अगर वो relative pronoun जो है object of the clause भी है तब भी जो है यहाँ आप उस चीज़ को skip नहीं कर सकते थे. लेकिन जहाँ बात करें डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, वहाँ पर जो है अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज हैं तो वहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कंटेक्ट क्लॉज. बट इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इवन इफ इट इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन, इवन इफ इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव, इवन रिलेटिव क्लॉज में अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर भी इस्तेमाल हो रहा है तब भी जो है यू कॉन्ट लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन. यू कॉन्ट लीव आउट द रिलेटिव प्रोनाउन इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. लाइक हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. अब यहाँ से जो है कुछ एग्जाम्पल, इट वाज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द डिफाइनिंग एंड द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. यही कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखनी है. दैट इज़ फर्स्ट, डिफाइनिंग क्लॉज में हमें सबसे पहले जो है नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बट हियर इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इट इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. नाउन पहले ही आइडेंटिफाई होता है. नेक्स्ट इज़ डिफाइनिंग क्लॉज में हम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको हम स्किप नहीं कर सकते. अगर हमने स्किप किया तो जो है सेंटेंस जो है वो हमें परफेक्ट सेंटेंस जो है नहीं प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन वहाँ अगर हम बात करें नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज की तो यहाँ पर जो है इट गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एसेंशियल. एक्स्ट्रा मीन्स जो है एडिशनल, एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल ज़रूरी नहीं है. और अगर हम इसको स्किप भी करें तो सेंटेंस पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है. सेंटेंस विल स्टिल मेक ए परफेक्ट सेंटेंस. थर्ड वन इज़ डिफाइनिंग क्लॉज जो है हमें रेस्ट ऑफ द क्लॉज से जो है हमें सेपरेट नहीं करना पड़ता क्योंकि इट्स ए वेरी एसेंशियल क्लॉज. वाइल एज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दैट इज व्हाई इट हैज़ बीन सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमा और कॉमास. फोर्थ पॉइंट इज डिफाइनिंग क्लॉज जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच और दैट से भी इन थिंग्स एंड हु फॉर द पर्सनस. वाइल एज अगर हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की बात करें इट इज़ ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंड नेवर बाय दैट, और पर्सनस के लिए हु. और एक पॉइंट है, अगर हम डिफाइनिंग क्लॉज की बात करें तो डिफाइनिंग क्लॉज में हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज.
अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास है तो उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन अगर हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास की बात करें, इवन इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव, स्टिल वी कांट ड्रॉप इट, स्टिल वी कांट लीव आउट दैट वेरी रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लाइक बशीर's मदर, उसके बाद कामा हु लिव्स इन श्रीनगर हैज़ 6 ग्रैंडचिल्ड्रन। बशीर's मदर, फर्स्ट ऑफ ऑल द नाउन इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। बशीर's मदर, हम किसकी बात कर रहे हैं? बशीर की माँ की। उसके बाद हमने कामा डाला। हु लिव्स इन श्रीनगर, वो कहाँ रहती है? दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बशीर's मदर हैज़ 6 ग्रैंडचिल्ड्रन, बशीर की माँ के 6 पोते हैं। बशीर's मदर हु लिव्स इन श्रीनगर, हु लिव्स इन श्रीनगर, दैट इज द non-defining clause. Sorry for the disturbance, फोकस नहीं हो रहा है इसीलिए। That means Bashir's mother who lives in Srinagar has 6 grandchildren. Bashir's mother, that is the noun is already identified. यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने कामा डाला। उसके बाद who lives in Srinagar has 6 grandchildren. वो कहाँ रहती है? श्रीनगर में रहती है, उनके 6 पोते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, I had just come back from India where my friend lives. I had just come back from India, उसके बाद हमने कामा डाला। Where my friend lives, that is not important. जहाँ मेरा दोस्त रहता है, important is I have just come back from, एक जो है इंडिया से वापस आया। विलियम शेक्सपियर, द नाउन इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, हर एक तो जानता है विलियम शेक्सपियर कौन था। हु राइट मैकबेथ, उन्होंने मैकबेथ ही नहीं लिखा बल्कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वॉज बॉर्न इन यूके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन यूके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, नॉट हु रोट मैकबेथ। हु रोट 7 एजेस ऑफ मैन ऑल्सो, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हु रोट हेमलेट ऑल्सो। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन यूके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ? यूके में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स विलियम शेक्सपियर इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, कामा हु रोट मैकबेथ, that is the non-defining clause, was born in UK. She is studying to become a doctor, which is difficult. She is studying to become a doctor. वो जो है डॉक्टरी के लिए पढ़ रही हैं। विच इज़ डिफ़िकल्ट, वो हर एक को मालूम होता है वो डिफ़िकल्ट है। लेकिन शी इज़ स्टडीइंग टू बिकम ए डॉक्टर, कामा विच इज़ डिफ़िकल्ट जो है दैट इज़ नॉन डिफाइनिंग क्लास, दैट इज़ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। शी इज़ स्टडीइंग टू बिकम ए डॉक्टर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends. There are 14 girls in my class, that is important. 14 लड़कियां मेरी क्लास में। A few of whom are my classmates. उनमें से कुछ ही मेरी क्लासमेट्स रही। A few of whom are my friends, not classmates. A few of whom are my friends. कुछ उनमें से जो है मेरी दोस्त थे। A few of whom are my friends, that is not important. There are 14 girls in my class. Next is the house, already identified. किस हाउस की बात करें? Which was built in 1883 has just been opened to the public. The house has just been opened to the public. The house which was built in 1883 has just been opened to the public. Next is my grandfather, who is 87 years old, goes swimming every day. Who is 87 years old, that is not important, that is not defining. वो कितने साल का है? What actually is important, that is my grandfather goes swimming every day. मेरे दादाजी जो है रोज़ स्विमिंग के लिए जा रहे हैं।
सिटी पार्क आइडेंटिफाइड, ये याद रखना है। दैट मीन्स जो नावन, जिस नावन की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है। सिटी पार्क वायर वो यूज टू गो हैज़ बीन क्लोज डाउन, यहाँ देख लीजिए जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने वायर लिखा, उसके बाद वही लिखा, यहाँ जो है हम स्किप नहीं कर सकते। सिटी पार्क वायर वो यूज टू गो हैज़ बीन क्लोज डाउन, सिटी पार्क वो यूज टू गो नहीं, यहाँ वायर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही ऑब्जेक्टिव भी है तब भी जो है हमें याद रखना है कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट नहीं करना चाहिए। इन डिफाइनिंग क्लॉज वहाँ पर आप ओमिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। सिटी पार्क कामा वायर वो यूज टू गो हैज़ बीन क्लोज डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिटी पार्क हैज़ बीन क्लोज डाउन, सिटी पार्क को बंद किया गया। फेब्रुअरी कामा which is my favorite month last 29 days this year. February which is my favorite month, February जो मेरा फेवरेट महीना है last 29 days this year. Important is February last 29 days this year. इस साल जो है लीप ईयर था, इसीलिए जो है इस साल के फरवरी में 29 डेज थी। My cousin कामा who lives in London is a doctor. What actually is important, my cousin is a doctor. वो कहाँ रहता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दैट मीन्स ये चीज़ें याद रखनी है। डिफाइनिंग में इस तरह नहीं होता, बल्कि नॉन डिफाइनिंग में जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये याद रखनी है। माई कजिन हु लिव्स इन लंदन, हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, हु लिव्स इन इंडिया इज़ ए डॉक्टर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा कजिन जो है वो एक डॉक्टर है। जॉन हु स्पीक्स फ्रेंच एंड इटालियन वर्क्स एज ए टूरिस्ट गाइड। जॉन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नाउन। नॉन डिफाइनिंग में ऐसा नहीं होता, डिफाइन में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बहुत सारों में डिफाइन में जो है जनरल में होते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई पर्टिकुलराइज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है। हु स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जॉन वर्क्स एज ए टूरिस्ट गाइड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जॉन वर्क्स एज ए टूरिस्ट गाइड। He gave me the letter which was in a blue envelope. He gave me the letter, that is important. वो किस में थी, ब्लू में थी, रेड में थी, या क्या थी, that is not important. He gave me the letter, that is important. उसके बाद कामा, उसके बाद लिखना था which was in a blue envelope. She is studying maths which many people hate. She is studying maths which many people hate. ने क्या लिखा है, शी इज स्टडीइंग मैथ्स। यहाँ पर भी जो है हमने दोनों सब्जेक्ट विच मैनी पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट बन गए। शी इज स्टडीइंग मैथ्स, तो हम यहाँ विच को जो है ड्रॉप नहीं कर सकते। शी इज स्टडीइंग मैथ्स मैनी पीपल हेट नहीं, बल्कि हमें लिखना है शी इज स्टडीइंग मैथ्स, हमें दोनों लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। शी इज स्टडीइंग मैथ्स, यहाँ पर विच लिखना है, जैसे ऊपर हमने वायर की बात की। शी इज स्टडीइंग मैथ्स कामा विच मैनी पीपल हेट, कितने लोग हेट करते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। शी इज स्टडीइंग मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ रही। माई सिस्टर हु वर्क्स इन चाइना लाइक्स बंगाली स्वीट्स, या लाइक्स बर्गर्स, या लाइक्स फ्रूट्स। माई सिस्टर सबसे पहले आइडेंटिफाइड। हु वर्क्स इन चाइना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो कहाँ पर काम करती है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। माई सिस्टर लाइक्स बंगाली स्वीट्स, माई सिस्टर लाइक्स चॉकलेट्स, माई सिस्टर लाइक्स फ्रूट्स, माई सिस्टर लाइक्स पिज़्ज़ा, माई सिस्टर लाइक्स, जो भी लाइक करती है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप टू सम हाउ, थोड़ा सा जो है इसमें जो है बीच में जो है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में बहुत सारी उधर उधर प्रॉब्लम हुई, डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन आई होप टू सम हाउ जो है थोड़ा बहुत जो है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर होगा। थैंक यू।